Hello to all of you once again and welcome to our today's lecture. As you already know that yesterday we have started one part from your syllabus of CA Foundation Business Law, and that is Introduction to the Law of Contract. Yesterday we have started. Up to the point we discussed that Indian Contract Act has been enacted on the 1st of September 1872, and you all are aware that the year 1872 clearly makes it aware us about the fact that Indian Contract Act has been enacted when Britishers were ruling over India. It has been created in a British India. Yesterday we have discussed that Indian Contract Act is a law in personam. Okay, we discussed the two terms. Number one term, law in a rem, when we have the right against the world at large. Okay, nobody in the world can come and beat me, and if anybody in the world come and beat me, I can take action. Nobody can interfere with my property rights. If anybody interfere with my property rights, I can take an action. Okay, so therefore this is called as a right in a rem or law in rem. And example I have yesterday told you that Indian Penal Code 1860 is considered to be the law in a rem. Okay, and opposite side our Indian Contract Act 1872 is considered to be law in a personam, because when the contract is between A and B, C cannot take an action. If A make a breach of contract, B can take action, or B make a breach of contract, A can take action. Maximum is legal hire or B's legal hires can take action. Okay, but C, D, E, F, G, the strangers to the contract cannot take an action. Okay, so contractual rights are law in a personal, because you can take action against a particular person only with whom you have made the contract. Okay, again yesterday I have told you that before 1930 or before 1932, sale of goods was a part and parcel of the Indian Contract Act. Again, Partnership Act was also not a separate act. Partnership was also a chapter in the Indian Contract Act. But in the year 1930, they make a separate act called as the Sale of Goods Act 1930. And in the year 1932, they make a separate act called as the Indian Partnership Act 1932. Okay. And now another important thing, yesterday we discussed that in Indian Contract Act, actually basically two parts are there. Number one, general principles applicable to the all types of a contract, and number two part which is there is a special contracts. Okay, out of that your CA Foundation Business Law syllabus have only section 1 to 75 of the Indian Contract Act, that you are going to have only the general principles of a law of a contract from your syllabus. And yesterday, just to know what are the different types of a special contract in Indian contract are there, we have started to understand the meaning of that particular terms. Okay, what are that different types of a special contract we found in the Indian Contract Act second half part, which you are going to study in your intermediate level, are two contract yesterday we already discussed. Okay, guarantee and indemnity. And I already told you that गारंटी मतलब क्या होगा, हमने कल डिस्कस किया था कि when A brings B to the C, and told to the C that let him have the goods he want, उसको जो भी goods चाहिए उसको दे दो, I make sure he will pay, and अगर उसने pay नहीं किया तो I will pay. That is, A is taking a suretyship of B that B will guaranteely pay to the money to the C. Now this is called as the law of guarantee or a contract of a guarantee. एंड इंडेमनिटी में हमने क्या डिस्कस किया था, बोलो, एक इंसान दूसरे इंसान की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली खुद को ले रहा है. हाँ, दैट इज वी डिस्कस ए ब्रिंग बी टू द शॉप ऑफ अ सी एंड टोल्ड टू द सी दैट लेट हिम हैव द गुड्स व्हाट ही वांट, आई विल पे. मतलब यहाँ पे बी का रोल पूरा क्या था, यहाँ पे आपको पैसिव था. हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज दो ही है. कौन दो पार्टी, ए और सी. इंडेमनिटी होल्डर मतलब सी जिसको इंडेमनिटी दी है, और जिसने इंडेमनिटी दी है उसको बोला जाता है इंडेमनीफायर. मतलब कौन है, बोलो, ए. हाँ, एंड इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, बी का कोई इसमें रोल ही नहीं है ए और सी के बीच में, कि डायरेक्टली ए सी को प्रॉमिस करता है कि मैं इसको पैसे क्या कर दूंगा, वहां पे दे दूंगा. हाँ, ज्यादातर हमारे जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सारे क्या होते हैं, बोलो, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, क्योंकि देखो जिसने एक्सीडेंट किया उसका कोई इश्यू ही नहीं है वहां पे. हाँ, या बीमार किसकी वजह से पड़ा, डजंट मैटर.
आप बीमार पड़ गए, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देगी। हाँ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी, एक्सीडेंट करने वाला कोई भी हो, बट किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसने इंश्योरेंस निकाला हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या दे देगी, पैसा दे देगी। मतलब दो ही पार्टीज है, एश्योर्ड और एश्योरर, बीच में जिसकी गलती वहां पे होगी उसका कोई इश्यू है क्या वहां पे, नहीं है। हाँ, तो इफ यू टेक अ पॉलिसी, directly company is going to pay you the money for any kind of the misfortune happen in the life of that particular person. So insurance contract जो होते हैं वो सारे insurance contract ज्यादातर किसके एग्जाम्पल होता है, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किसके एग्जाम्पल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एग्जाम्पल होते हैं। ओके, अप टू द पॉइंट yesterday we have discussed, now we'll proceed with the today's part. We will deal with some other special contract which are there in the Indian Contract Act, which are not actually part and parcel of the syllabus of CA Foundation, but you are going to have that in the intermediate level, and I think you must know at least the meaning of that particular words. Okay, so we'll proceed with our introduction to the law of contracts. Okay, so as I already told you that Indian Contract Act has been enacted in the year 1st of September 1872. Indian Contract Act get divided into the two parts. Number one part, that is section 1 to 75, general principles of the law of contract, and then remaining part is called as the special contracts. Out of the sale of goods has been repealed from Indian Contract Act and a special act has been created, Sale of Goods Act 1930. Same, partnership has been repealed from the Indian Contract Act, and special law Indian Partnership Act 1932 has been created thereon. And right now the special contract which are still there in the Indian Contract Act are indemnity and guarantee, which we just discussed, mean by what, then bailment and the pledge, and agency. Okay, now we'll go on to the concept of the bailment and the pledge. Let's take one example for what is mean by the word bailment. Suppose I have some ornaments, and I want to polish that particular ornaments. Okay, so I gave the ornaments to the goldsmith for the purpose of polishing that, and I promised him, as per his request, that I will pay him rupees 500 for polishing that particular ornaments. Okay, so here what is created? See, contract is created, right? And now what is the type of the contract? It's called as a contract of a bailment. What is the term? I'm going to give the ornaments to the goldsmith for the purpose of किस चीज के लिए दूंगी उसको मैं, पॉलिशिंग के लिए, एंड ही प्रॉमिस कि जैसे ही पॉलिशिंग हो जाएगा मेरा ऑर्नामेंट्स मुझे क्या करेगा, वापस वहां पे दे देगा. ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय द वर्ड bailment? See, I'll give you the definition of the term bailment. Bailment means a delivery of a goods, means I gave the ornaments to the goldsmith. Okay, delivery of a goods by one person, that is I, to another person, that is goldsmith, on a condition, on a condition, when the purpose is accomplished, the goods will be delivered back or destroyed according to the direction of the किसके direction के हिसाब से वहां पे promise. Okay, so the point has been that one. Bailment क्या है, ध्यान में रहे आपको, डिलीवरी ऑफ गुड्स, हम किसी और को अपने गुड्स देते हैं फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए, ऑन अ कंडीशन व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, पर्पस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ही विल गिव अस बैक our goods. That is considered as the goal concept of the bailment. Now see, there are unendable number of the bailment we used to do in our daily life. bailment बहुत कॉमन कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसे ना मैंने कपड़े आयरनिंग के लिए दे दी, बेलमेंट ही है ना, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पस, आयरनिंग खत्म, वो अपने गुड्स अपने को वापस दे देगा. ओके, मेरा मोबाइल खराब हो गया, मैंने वो दुरुस्ती के लिए दिया, ये भी क्या बोला, इट्स आल्सो कंसिडर्ड एज अ बेलमेंट. ओके, माय कंप्यूटर गेट समहाउ अनरिपेयर्ड, आई गिव द कंप्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयरिंग, ये भी क्या हो जाएगा, बोलो वहां पे बेलमेंट ही हो जाएगा. ओके, मेरे सीए के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, और नाउ दिस ईयर माय वन ऑफ फ्रेंड is in the need of books and etc. He's a poor person, suppose, having economic issues, so I gave him a book for a purpose of examination on a condition कि examination खत्म हो जाएगी, मेरे books मुझे वापस दे देना. Again this is considered as a bailment. Okay, तो bailment मतलब for whatever number of purpose you can make a bailment, ironing, polishing, repairing, stitching,
ऐसे अलग अलग पर्पस के लिए बेलमेंट क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। हाँ, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑन अ कंडीशन कि पर्पस खत्म, गुड्स क्या हो जाएंगे, डिलीवर्ड बैक। हाँ, रीडिलीवर्ड बैक बोल दो तो इट्स कॉल्ड एज अ क्या कंसिडर किया जाएगा, बेलमेंट कंसिडर किया जाएगा। हाँ, एंड नाउ व्हाट इज अबाउट प्लेट्स। हाँ, देखो बेलमेंट का पर्पस कुछ भी हो सकता है, लाइक बेलमेंट का पर्पस आयरनिंग हो सकता है, पॉलिशिंग हो सकता है, लेकिन जब वो बेलमेंट एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट या सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम प्रॉमिस किया जाता है तो वो बेलमेंट बन जाता है प्लेज। हाँ, आप लोगों ने घर गिरवी रख के लोन लेना सुना है, डेफिनेटली सुना होगा कि लोग घर गिरवी रख के लोन लेते हैं, इमोबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेते हैं। मॉर्गेज वर सुना होगा मेरे साथ साथ सबने शायद कभी ना कभी लाइफ में अपने मॉर्गेज। हाँ, ना मॉर्गेज क्या है बोलो, जब आप इमोबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लेते हो दैट इज कॉल्ड एज अ मॉर्गेज, उसको क्या बोला जाता है, मॉर्गेज। हाँ, और वही अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लेते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लेते हो देन इट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोला जाता है बोलो, प्लेज। हाँ, तो प्लेज क्या है बोलो, प्लेज बेलमेंट ही है, बट बेलमेंट में कोई भी पर्पस हो सकता है और प्लेज का पर्पस एक ही है। प्लेज का पर्पस क्या बोलो, डिलीवरी ऑफ अ गुड्स फॉर, किसके लिए, सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ मनी और परफॉर्मेंस ऑफ सम प्रॉमिस, देन इट इज कॉल्ड एज अ प्लेज। हाँ, आप सिंपल भाषा में याद रखना, इमोबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के लोन लिया तो क्या हो जाता है वो मॉर्गेज, और मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के लोन लिया तो वो क्या हो जाता है, प्लेज हो जाता है। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं लूं, I'm in a need of a money. I have a gold chain with me. I decided that I'm going to put the gold chain as a security in the bank, and I'm going to take a loan of rupees 20,000 from the bank. Okay, and accordingly, bank also agrees to take my gold chain on a condition कि when I will make a repayment of a money, my gold chain will be given back me. That is called as a pledge. हाँ, तो pledge क्या है देखो, pledge is a bailment. प्लेज की जो आपको इंटरमीडिएट में डेफिनेशन मिलेगी, वो प्लेज की इंटरमीडिएट में डेफिनेशन आपको मिलेगी, वो क्या होगी बोलो, प्लेज इज अ बेलमेंट फॉर अ सिक्योरिटी ऑफ अ पेमेंट ऑफ अ मनी और परफॉर्मेंस ऑफ सम ऑब्लिगेशन। हर प्लेज कंपलसरी बेलमेंट होगा, हर बेलमेंट प्लेज नहीं होगा, क्योंकि बेलमेंट कपड़े आयरनिंग के लिए हो सकता है, बेलमेंट पॉलिशिंग के लिए हो सकता है, बेलमेंट रिपेयरिंग के लिए हो सकता है, बट जब बेलमेंट एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट किया जाता है तो वो बन जाता है प्लेज। तो कंपलसरी हर प्लेज बेलमेंट पहले होता है, बाद में प्लेज होता है, बट हर बेलमेंट जरूरी नहीं कि क्या होगा बोलो, प्लेज वहां पे होगा। हाँ, एंड द लास्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज देयर इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत कॉमन है, एजेंसी। आपको पता है जैसे जैसे बिजनेस हमारा बढ़ता जाता है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग क्या करें वहां पे अकेले ही सब कुछ करें, तो हमें किसको अपॉइंट करना पड़ता है वहां पे, एजेंट्स को अपॉइंट करना पड़ता है। तो अगर सपोज आई हैव अ प्रोडक्शन ऑफ सम कंप्यूटर पार्ट, ओके, एंड हर जगह जाके मुझे खुद को बेचना पॉसिबल नहीं है, देन आई अपॉइंटेड मिस्टर ए बी सी, ए इन द इचलकरंजी, बी इन द कोल्हापुर, सी इन द सांगली for distributing my goods, okay, then I am appointing them as an agent, simple. So one principal को हर चीज खुद से करना पॉसिबल नहीं होता, एंड अपने अथॉरिटीज किसी और को वो डेलीगेट करता है अपना काम करने के, then he is appointing the agent. So that is another thing which is there in the special contract. We are going to study in the intermediate level, that is agency. Got the point? ध्यान में आ गया क्या सबको? देखो आपस एक बार, Indian Contract Act 1872 has been enacted on the 1st of September 1872. Get divided into the two part. Number one part, section 1 to 75 special contract को applicable general rule वहाँ पे दिए गए. So general principles of a contract applicable to the all type of a contract are given in section 1 to 75, which is our CA foundation business law syllabus. Then section 76 से लेकर 266 तक सारे क्या बोलो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से सेल ऑफ गुड्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से हटा के सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाया है, पार्टनरशिप को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग से सेपरेट एक्ट क्या किया गया, बनाया गया। तो एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शन है इसकी बात करें तो नंबर 1 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड नंबर 2 सेक्शन 124 से लेकर 238 तक सेक्शंस बाकी बचे हुए सेक्शंस है, which are included of the special contract like indemnity, guarantee, bailment, pledge, and agency. Okay, what the point? Now
देखो मैंने आपको कल भी बताया था, हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यू नीड टू बी अ बिग बिजनेसमैन, बिग बिजनेस टाइकून्स एक्सेट्रा, ओके, यू आर एन अंबानी और यू आर अ टाटा's only then you are making no contract, no, not like that. We enter into contract every day. We are purchasing vegetable, we are taking a petrol, we are ordering pizza, we are going into the restaurant and ordering a cup of a coffee. All these are considered to be a contract, okay. Taking a seat in a bus, just simply आप बस में चढ़ते और बस में सीट लेते हो, that also amount to contract, हाँ. When you put a coin in the wedging machine, again that is also contract, हाँ. When you went into the restaurant and take some snacks in the restaurant, that also considered as a क्या हो जाएगा बोलो, contract हो जाएगा, हाँ. तो हमें हमारे डे टू डे लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट करने, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी कॉन्ट्रैक्ट करने, एंड इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का जो रिलेटेड लॉ है वो लॉ कौन से एक्ट में आपको मिलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ओके. द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इज बी फाउंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, वो लॉ में मिलता है वहां पे. द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is the most important branch. मैंने आपको already बताया था, from your syllabus point of view also and as well as from the practical life point of view also. अगर हम सिलेबस में से सारे एक्ट्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट क्या बोलो वहां पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट कंसिडर किया जाता है. अगेन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that the law relating to the Indian contracts is found in the Indian Contract Act 1872, and this act has been passed by British India. This act has been passed by British India. और इंग्लैंड में जो कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स हुआ करते थे उस पे बेस्ट हमने हमारा ये एक्ट बनाया हुआ है. दिस लॉ हैज बीन पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया एंड दिस लॉ इज बेस्ट ऑन, किस पे बेस्ट है बोलो, इंग्लिश कॉमन लॉ पे ये एक्ट क्या है वहां पे बेस्ट है, हाँ. नाउ अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमें क्या करना है यहाँ पे डील करना है, हाँ. एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या बोलो, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. Now see, this act is applicable to the whole of India, हाँ. ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर्म में भी रह सकता है. कुछ आपको एक सिचुएशन दे देंगे एंड उस सिचुएशन के हिसाब से आपको पूछेंगे कि एक्ट इस पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल है या नहीं है एक्सेट्रा. बिफोर मेकिंग एन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट करने के पहले, किसमें अमेंडमेंट करने के पहले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के पहले, जो 2019 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, वो अमेंडमेंट करने के पहले दिस एक्ट वाज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. क्योंकि आप सबने सुना होगा कि आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हुआ करता था, भले ही Jammu Kashmir was a part and parcel of India, but many laws which are applicable in India were not applicable to the state of Jammu and Kashmir, हाँ. And उन सारे laws में one of the law was Indian Contract Act also. तो Indian Contract Act का जो application था वो कैसा था बोलो, this act is applicable to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. But in 2019 there was an amendment. Article 370 of the Indian Constitution was removed from Indian Constitution by the BJP government, and after that, majority of the law which are applicable in India started to applicable to the state of Jammu and Kashmir. Among that, one law is the Indian Contract Act 1872 also, and therefore, अब ये जो law है, ये किसको applicable है बोलो? This act is applicable to the whole of India. हम इसको applicable है whole of India. Okay, so देखो एक कंक्लूजन करते जो भी डिस्कशन हमने किया उसका. सो सम पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. प्रायर टू द पासिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, इंग्लिश लॉ हम एज इट इज फॉलो करते थे. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल अब हुआ बोलो 1 सितंबर 1872, राइट. ब्रिटिशर इंडिया पे कब से रूल कर रहे हैं बोलो, लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे हैं हमारे यहाँ पे. सो देयरफॉर ऑफ कोर्स ये लॉ पास होने के पहले क्या एप्लीकेबल होता था इंडिया में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल होने के पहले इंग्लिश जो लॉ था वो एज इट इज इंडिया में क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट के लिए फॉलो किया गया था, हाँ. देन मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जस्ट इन पर्सनल में या जस्ट इन रे में
लॉ इन कॉन्ट्रैक्ट जस्ट इन पर्सनम है, क्योंकि डील विद द राइट्स बिटवीन टू पर्टिकुलर पर्सन ओनली, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंड नॉट द वर्ल्ड एट लार्ज. देन नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने आपको बताया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गेट डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट. वन पार्ट वी हैव इन फाउंडेशन, अनदर पार्ट वी हैव इन द इंटरमीडिएट लेवल. जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक पार्ट है, और दूसरा का पार्ट क्या बोलो, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो देयर. ओके, नाउ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा सिलेबस हमें स्टडी करना है फाउंडेशन का, आउट ऑफ 5 एक्ट 1 एक्ट वी आर गोइंग टू सी, एंड आउट ऑफ दैट 1 एक्ट वी आर गोइंग टू सी सेक्शन 1 to 75 जो सेक्शंस है वो हम लोग क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं. हाँ, देन ऑल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रिंसिपल्स क्या किए जाते हैं, एप्लीकेबल किए जाते हैं. हाँ, देन मैंने आपको बताया 1 to 75 वी आर गोइंग टू स्टडी विल बी general principles of contract, and then other, after repealing sale of goods and after repealing Indian partnership, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बचे हुए सेक्शंस कहां से कहां तक है बोलो, सेक्शन 124 से लेकर 238 तक सेक्शन है. हाँ, एंड इसमें क्या दिया गया है, रिमेंबर ऑल ऑफ यू, ध्यान में आपके इन सेक्शंस में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट है. कौन सा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है बोलो, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी. हाँ, इन सबके रिस्पेक्टिव मीनिंग हमने क्या किए, डिस्कस किए वहां पे. ओके, सो एट द एंड दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड व्हाट वी हैव सीन इन दिस टुडेज लेक्चर about Indian Contract Act's introduction is that one. Indian Contract Act 1872 has been passed in British India. Before passing of this particular law, British law was applicable to the provision of contract in India. Then this act came into force कब आया, 1st of September 1872 को ये act क्या हो गया, came into force हो गया. Act कहाँ applicable है, it is applicable to the whole of India. बट मैंने आपको यहाँ पे बताया 2019 के अमेंडमेंट के पहले आर्टिकल 370 was applicable in India, and therefore most of the Indian law were not applicable to the state of Jammu and Kashmir. उनमें से एक लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी था. सो 2019 के पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं था, बट आफ्टर द अमेंडमेंट आर्टिकल 370 removed from Indian constitution, and therefrom this act is become applicable to the whole of India, including state of Jammu and Kashmir. Act divided into the two part, general principles of a contract section 1 to 75, and then आ जाता है special contracts like indemnity, guarantee, bailment, pledge, agency. Previously partnership and sale of goods were also part of a Indian Contract Act, but वहां से उनको हटा दिया, and Indian Contract Act में से हटा के Sale of Goods Act 1930 special law बना, Indian Partnership Act 1932 special law बना. Indian Partnership Act था अपना एक सेपरेट एक्ट बन गया, और इधर से क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उसका जो पार्ट था वो हटा दिया. सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक सेपरेट लॉ बन गया, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था उसको क्या कर दिया, रिपील कर दिया. हाँ, एंड तो अभी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड दूसरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लाइक इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, इतना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है, जिसमें से 1 to 75 section will be the syllabus. From our next lecture we are going to start for Indian Contract Act.